Good morning, all of you. Welcome back to Ansarkari. So, starting with the news analysis for 15th of December. So, terror charges have been invoked in the security breach case, and this would be under the Unlawful Activities Prevention Act 1967. If I'm correct, this is the right year for this act. People, they call the act as well-planned conspiracy attack on the parliament. So, this was done on the 22nd anniversary of the parliamentary attack, the terror attack which was done. So terror link now seeking the custody of the four Delhi police told. So here we need to know the difference between police custody and the judicial custody. And apart from this, we have taken this up. Okay, so they have declared a reward payable through the Swiss banks also. So pamphlet. So here we are trying to trace and investigate even if there is any international link also. So for that, we have declared a kind of reward which would be payable through the Swiss banks. So accused had posted on social media a pamphlet with a photograph of even Prime Minister Modi and the word missing plastered over it. So okay, कुछ वैसे link है इसका. It is not the way I have put it up. Apart from this, we'll wait for investigation and उसमें और क्या links निकल के आते हैं. So it can have a international link as well. So we can say कि terror attacks they have become borderless again with the advancement of the technology. So कल हम एक quotation की भी बात कर रहे थे कि sufficient technological advancement. So यहाँ पे we can say कि वो एक इसका negative impact भी है, तो हम उसको sufficient नहीं बोल सकते. So 14 opposition member of parliaments, they have been suspended from the house amid the face-off. So here we'll look into exactly what is, under which provision they have been suspended, and it is again in the powers in the hands of the Lok Sabha Speaker. So they were 14 opposition MPs were suspended because they were causing disruption in the parliamentary proceedings. And this impacts the efficiency, the efficient functioning of even the parliamentary sessions. And overall, अगर हम इसको broader basis पे discuss करते हैं, तो we often discuss about कि parliamentary sessions में जो outcome है या जो effectiveness है in terms of क्या निकल के आया, that has been reducing the number of budgets which are the number of bills which are set for the standing parliamentary committees, recommendations, and the analysis. So number of bills have also been reducing. This is one point. So resolution had to be passed. So two separate resolutions were passed in Lok Sabha to suspend the MPs for showing utter disregard to the House and showing disrespect to the House. So parliamentary, basically the floor of the House is no place to, for such kind of acts, for face-offs. So Dal Lake, frozen, this is there in Srinagar, and shikaras have been docked. So boat houses ko, the term that we use there is shikaras. So we know कि important tourist destination है. इसमें डल लेक की अगर मैं बात करूँ तो झेलम रिवर जो है वो आती है, उसका उधर से पानी आता है डल लेक. Okay. डल लेक नेचुरल है या आर्टिफिशियली बनाई गई है? It is a natural lake according to me. We can verify this, Karuna. Yes, it is a natural lake. Okay, thank you. ये ले सकते हो फार्मर सुसाइड का 2366 फार्मर्स एंडेड देयर लाइफ. महाराष्ट्र में ज्यादा क्यों मिलता है ऐसा, मानसिक, अकॉर्डिंग टू? महाराष्ट्र में ज्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे ड्रॉट्स ज्यादा होते, तो ड्रॉट्स ज्यादा होते तो दिस इम्पैक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ
दी एग्रीकल्चर एंड द कल्टिवेशन, तो उनका हार्वेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। प्लस वी कैन से कि वेस्टर्न इंडिया में ही ज़्यादा लोकस्ट अटैक भी होते हैं, सो एक वो रीज़न हो सकता है। एंड अगेन डेट ट्रैप जो एक प्रॉब्लम है, लोन्स लेते हैं उसको रीपे भी करना है बट उनकी इनकम इतनी नहीं हो पाती, सो दे एंड देयर लाइव्स। दिस कैन बी वन द रीजंस अकॉर्डिंग टू मी। इसमें कुछ और अलग हो सकता है? नहीं, सही बात है, मराठवाड़ा रीजन बाकी जगह में वाटर स्कैसिटी है और एग्रीकल्चर भी मतलब दिक्कत है। और हम लोग बात करते हैं ना शुगर केन कल्टीवेशन, उसी कारण भी वाटर स्कैसिटी बढ़ती जा रहा है। कॉटन कल्टीवेशन है, शुगर केन वाटर राइट। इंसेंटिव क्रॉप है। सो वाटर एक्विफायर्स जो हम बोलते हैं, दैट इज बीन डिप्लीटिंग। तो यस। अमरावती रेवेन्यू डिवीजन में सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। देन मद्रास हाईकोर्ट का कहना ये कि वेदर किलिंग ऑफ द हिंदू रिलीजियस लीडर्स इज अ टेररिस्ट एक्ट इज डिबेटेबल। सो इट इज डिबेटेबल, आप टेररिस्ट एक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं कैटेगराइज कर सकते हो। अब इंटेंट क्या है किसी भी एक्ट के पीछे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, I think that should be the objective basis of deciding whether that is a terrorist act or not. And इसमें again we have discussed कि terrorist act की जो definition है that is being expanded more। उसमें हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक एंगल भी लिया जा रहा है। अगर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी के ऊपर भी किसी एक्ट का इम्पैक्ट है, सो दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ टेररिस्ट एक्ट। बट अभी ये ड्राफ्ट बिल का पार्ट है, अभी वो बिल पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, इट इज स्टिल इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। So this one change has been done. So Section 15 of Unlawful Activities Prevention Act, if it had been committed with an intent to threaten or that is likely to threaten the country's unity, integrity, security, economic security, or the sovereignty, then it would be considered as a terrorist act under this particular Section 15 of UAPA. So this can be noted down, these specific details. There are different sections that this can be taken up. So constitute a nodal authority for declared foreigners. This is being highlighted by the Guwahati High Court. So nodal authority होनी चाहिए। So declared foreigners. So हमने यहाँ पे इस context में foreigners tribunals की बात करी थी, which we find only in the state of Assam. So foreigners tribunals जो हैं उनका main objective ये कि when we say कि migrant population, uh, obviously that is because from the Bangladesh or from Myanmar. So Myanmar में we know कि after the junta government, we have seen migrants moving from the Rakhine state towards India in the states of Manipur and Assam. And Bangladesh se when we talk about migrants or refugees, so that was that major incident जो था that we witnessed after 1971. So यहाँ पे mentioned भी है। So उस कॉन्टेक्स्ट में फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स वर देयर, वेदर लाइक असम अकॉर्ड में हमने बात करी थी 1971 और 1966 से पहले इस टाइम पीरियड में जो भी रिफ्यूजीज इंडिया में आए, माइग्रेंट्स आए, बिकॉज ये अभी ऑफलेट बोला जा रहा था कि असम में भी दिस वाज प्रोटेस्ट कि जो लोग अभी आ रहे हैं वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट जो चैलेंजेस है दैट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू देयर कल्चर। बट सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि असम अकॉर्ड में ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो उस टाइम पीरियड का और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो। सो दिस वाज वन पार्ट ऑफ डिबेट। एंड so whether basically कि migrant citizen है, non citizen है, this is again declared by the foreigners tribunals. So यहाँ पे जो बोला गया है कि it would be appropriate for the chief secretary to the government of the Assam to appoint a nodal authority that may exercise interdepartmental jurisdiction for doing the needful as well as coordinate with the other departments for foreclosing the declared foreigners from retaining any such documents he is no longer entitled to. तो इस पर्पस के लिए बोला जा रहा है कि एक नोडल अथॉरिटी होनी चाहिए, सो एज टू चेक कि जो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होने चाहिए या जो होने चाहिए वो हैं और जो नहीं होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए उनके पास।
So Confederation of Indian Industries. Here we are seeing XCon. It is building India's tomorrow's. तो टेक्नोलॉजी में बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस. सो हाँ, स्पेसिफिकली हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. की हाईलाइट्स इज दैट इट वुड बी देयर इन 32,000 स्क्वायर, not 32,000, sorry, 32 lakh square feet of exhibition display area and participating countries. These are the participating countries. तो यहाँ पे हम मतलब इसके पीछे पर्पस क्या है of hosting this largest construction equipment exhibition in South Asia. So this is for the technology transfer, for knowing the technology know-how in India, and again is a part of modernization of the transportation sector, and also in terms of the infrastructure also. So this is under Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Heavy Industries also. तो इसमें थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, उसमें एक म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, शायद उसको डिस्कस कर सकते हैं. कौन सा आर्टिकल बोल रहे हो आप? ये बना जस्ट ये हाईलाइट किया है आपने उसके साइड में. ये उड़ीसा वाला ना, उड़ीसा हाईकोर्ट डायरेक्ट्स द पूरी सिविक बॉडी टू पे ₹10 lakh to kin of child who died of a dog bite. तो we've been talking about कि एक तो डेंजरस डॉग्स नहीं रखे जाने चाहिए विच आर बैंड इन इंडिया, बट स्टिल यहाँ पे MCD दिल्ली की बात अगर हम करें तो दे स्टिल अलाउ, वो उसके बाद भी डेंजरस डॉग्स एज पेट को रखने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं. सो यहाँ पे अगर डॉग बाइट्स हो रही है या जो डॉग मिनट्स है, स्ट्रे डॉग्स की हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ बीन इंक्रीजिंग एंड such incidences are also increasing. So it is the responsibility of the civic bodies of the municipalities. So यहाँ पे if ऐसे incidents देखा गया कि एक dog bite हुआ जहाँ पे बच्चे को डॉग ने बाइट किया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगेंस्ट सिविक बॉडी की है टू पे द फाइन फॉर दिस. तो मतलब इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का एग्जांपल ले सकते हैं ना. हाँ, वी कैन से दैट. रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस भी हम बोल सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर सकते हैं. सो डीलिस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ये पूरा लाइक इसके पीछे क्या प्रोसेस है. सो यहाँ पे दिस इज डन अंडर द RPA 1951 एक्ट, and it is only the House can decide when we talk about delisting the parties or deregistration of the parties. Parliament is the right forum to decide on the legitimacy of the political parties having names with caste, religious or ethnic or linguistic connotations, as policy making does not fall in the domain of judiciary. So this we can say और it is इलेक्शन an कमीशन example डू of नॉट हैव एनी separation. पावर. हाँ, Election Commission of India does not have the power to deregister or to delist. Yes, it can only register. और हाँ, दोनों में क्या फर्क है दिव्या, RPA एक्ट 1950 और 1951 के बीच में बेसिक फर्क? मेरे को नहीं पता, उशिका आप बता दो. तो इलेक्शन के लिए जो भी करना पड़ता है स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल नॉमिनेशन हो गया, सब आर्टिकल 1950 क्वालिफिकेशन हो गया वोटर का, या इलेक्टोरल रोल्स के हिसाब से काम करना पड़े, एलोकेशन ऑफ सीट हो गया, तो 50 के अंदर में आएगा. फिर जो प्रोसेस है ना इलेक्शन का, फॉर एग्जाम्पल कैसे इलेक्शन करवाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लगाना है, उसके बाद फिर जो भी इलेक्शन से डिस्प्यूट हो गया, ग्रीवांसेस हो गया, वो आर्टिकल 51 है. तो प्रोसेस आर्टिकल 51 1951 के अंदर में, और प्री इलेक्शन जो भी काम है 1950 के अंदर में. ये बेसिक डिफरेंस. और यहाँ पे ये बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि अगेन पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनका नाम इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन और एनी एथनिक और लिंग्विस्टिक कॉनोटेशंस निकल के आती है, बट स्टिल पीपल डू नॉट वोट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम
और कौन से रिलीजन को पार्टी सपोर्ट कर रही है। इट इज़ मोर ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी पॉलिसीज़ की वो बात करते हैं, उनका आगे का आने वाले 10 से 15 सालों का क्या विजन है, कौन से एरियाज में वो वर्क करेंगे, कौन से वेलफेयर मेजर्स की वो बात करते हैं। तो वो बेसिस है ऑफ गिविंग द वोट एंड नॉट जस्ट द नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2005 में एक ये पॉलिसी डिसीजन लिया था कि दे विल नॉट बी रजिस्टरिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी विद द नेम्स जिसमें अगेन रिलीजियस कॉनोटेशंस रिफ्लेक्ट होती हैं। सो उसके बाद से ऐसी कोई पार्टी रजिस्टर नहीं की गई है। So gas leak triggers fire in Vizag hospital. So we'll look into exactly which gas has been there. It is not mentioned. So nitrous oxide leak in the second floor. This was again poisonous gas. And यहाँ पे second aspect जो important है fire safety. So firstly the response time बहुत quick होना चाहिए when we talk about the the firefighters। तो हॉस्पिटल्स या कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो स्पेसिफिकली उन एरियाज के अराउंड फायर स्टेशंस होना एक तो इम्पोर्टेंट है, सो दैट अगेन दे कैन क्विकली रीच सच स्पॉट्स। एंड मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए इवन इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो। और हम बात करते हैं जो लाइसेंसिंग है फायर सेफ्टी का वो भी दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ the prerequisites or the conditions if they are fulfilled। बट क्या आपको लगता है मॉक ड्रिल्स को लोग सीरियसली लेते हैं जब ऑफिसेज में भी कंडक्ट की जाती है? हाँ वही बात है ना, यहाँ पे बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हैं। तो अगेन ऐसा कुछ होना चाहिए कि मॉक ड्रिल्स अगर होती हैं तो इट शुड बी रिपोर्टेड टू द अथॉरिटी। या आज के टाइम में ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो दैट शुड बी अपलोडेड ऑन अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड पोर्टल। ऐसा होना चाहिए सो दैट अगेन वो अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है यहाँ पे। सो ऐसा कुछ stringent मेजर्स भी होना चाहिए कि आपका लाइसेंस अगर हम बात करते हैं तो दैट शुड बी बैंड या इट शुड बी विदड्रॉन अगर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही ऑन पीरियोडिक बेसिस। एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फायर सेफ्टी में जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स इज द टर्म दैट वी यूज। और हम बात करते हैं कि फायर सेफ्टी क्लोथिंग या जो पूरा सूट होता है सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स यही रहते हैं कि फायर सेफ्टी है, दे कैन नॉट बर्न सो इजीली। सो वो किस मटेरियल के बनते हैं औशिक, इफ वी कैन डिस्कस दैट अगर आपको पता है, अदरवाइज विल फाइंड आउट। ऐसा तो एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब हाँ विल, मटेरियल्स लिखा हुआ है। हाँ देखना पड़ेगा। फायर सेफ्टी प्रोसेस में पब्लिक प्राइवेट दोनों को लगा सकते हैं। जैसे एमसीडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि वो जो ऐसी जगह है जहाँ पर क्राउड होता है, हॉस्पिटल है या फिर बहुत ज्यादा फैक्ट्री वगैरह, उनमें रेगुलर चेक कर सकती है कि फायर सेफ्टी के लिए अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, फिर उनको लिमिटेड टाइम दिया जा सकता है कि इतने टाइम के अंदर जो चीजें जरूरी है वो वहां पर अवेलेबल हो। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। प्रेरणा, विल यू टेल कि बेलगावी रीजन न्यूज में क्यों रहता है या इसके पीछे इशू क्या है? माइंड आई डोंट नो। ओके, दिया, कैन यू टेल? देन करुणा। I don't know the आई थिंक लैंग्वेज के बेसिस पे इशू रहता है, कंफ्लिक्ट रहता है जो। नहीं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन विच टू स्टेट्स। तो अब स्टेट्स के नाम तो गेस करो। महाराष्ट्र कर्नाटक। महाराष्ट्र ही है। हाँ, राइट, महाराष्ट्र का मतलब। महाराष्ट्र एंड अगर कर्नाटक। पास्ट में बात करें तो शायद 1924 में कांग्रेस का वो हुआ था यहाँ पर अधिवेशन। और करंट में शायद वुमेन डिस्प्यूट से रिलेटेड है, उनके साथ बिहेवियर जिस तरह का किया गया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था जै- कि जैसे हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं ना, इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होता है हर एक स्टेट का, तो वाटर डिस्प्यूट होता है, बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, दो होता है ओवरऑल। और भी इशू है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन में ग्रांट के ऊपर है, बाकी सब, लेकिन वो अलग मैटर है। ऑन द जो फिजिकल डिस्प्यूट है वाटर और लैंड के ऊपर, लैंड फॉर एग्जाम्पल बाउंड्री हो गया, तो वाटर में डिस्प्यूट फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे बियास बिटवीन जो एक कैनाल है, SYK कैनाल, मानसी, वो एक कैनाल का नाम है ना, कैनाल, हाँ। पंजाब और हरियाणा के बीच में होता है। सतलुज यमुना। कावेरी, हाँ, तो हाँ यमुना कैनाल। तो कावेरी रिवर किसके बीच में होता है? तो तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड कर्नाटका,
वैसा हो केरला गया। केरला इज फिर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। कावेरी में। हाँ, हाँ केरला भी है। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक और मुल्लीप्रयर डैम, उसमें केरला और तमिलनाडु के बीच में। तो लैंड का एग्जांपल कैसे कैसे, तो गोरखा लैंड हो गया, नॉर्थ में आसाम, नॉर्थ ईस्ट में आसाम आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। फिर अभी देखा जाए तो बेलागावी बिटवीन द कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। तो बेलागावी रीजन था, वो पहले कर्नाटक का पार्ट था, और उसको एक तरह से क्लेम करता है महाराष्ट्र के मेरा पार्ट है। ये एक ओवर एक सो से इंडिया मैं डिटेल में बता फास्टेस्ट देता हूँ। सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की गई है। द नेम इज बाराकुडा एंड इट कैन नेविगेट थ्रू वेव्स एज टॉल एज 4 meters और इट इज ऑपरेटिंग विदाउट नॉइस एंड वाइब्रेशन, क्योंकि सोलर पावर से वो चलती है। सो इससे अगेन मरीन लाइफ को भी डिस्टरबेंस नहीं होगी जब हम नॉइस पोल्यूशन की बात करते हैं, एंड अगेन एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। सो दिस इज अगेन स्पीड के पर्सपेक्टिव से भी दिस इज द फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। सो ग्रीन मैरीटाइम रिफॉर्म्स के जब हम बात करते हैं, मेजर्स की जब हम बात करते हैं, तो दिस कैन बी साइटेड। Barracuda is the name. So designed by Navalt and it can be deployed even in rough seas also. So उस perspective से भी like from the perspective of disaster safety and preparedness. So multiple यहाँ पे बोल सकते multi-dimensional benefits are there. Eco-friendly vessel Mumbai dock में. So Mazgaon dock, it will also introduce such types of boats further. सो इसका जो हम बात करते हैं मैज़गान डॉक लिमिटेड, सो और कहाँ हम इनका नाम सुनते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, कहाँ इंपॉर्टेंट रोल है? बता, करूँ ना, करुण। न्यूज में आते रहते हैं। क्वेश्चन रिपीट करोगे आप? आई वाज आस्किंग कि मैज़गान डॉक लिमिटेड एज अ मैन्युफैक्चरर और कौन से इंपॉर्टेंट एरिया में हम बात करते हैं? नेवी के पर्सपेक्टिव से। ट्रू। हाँ, नेवी के हाँ मतलब पर्सपेक्टिव, नेवी में। हाँ, सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो आईएनएस बहुत सारी लाइक 6 टाइप्स ऑफ आईएनएस सबमरीन्स जो मैन्युफैक्चर की गई हैं, दैट इज मैज़गान डॉक लिमिटेड। ये अभी एसवाईएल की हम बात ही कर रहे थे। सो सेंटर कॉल्स मीटिंग ऑफ पंजाब हरि। औशिक, यू कैन कंटिन्यू SYL। a minute. I'll be back. ठीक है। SYL सोरो। तो वैसी बात की थे, बेलावी को बताया था पहले, वी वर डिस्कसिंग अबाउट बेलावी रीजन। तो हिस्टोरिकली बेलावी डिस्ट्रिक्ट था वो, इट वाज अ पार्ट ऑफ द कर्नाटका, और आज भी कर्नाटका में है। लेकिन उसको एक तरह से क्लेम किया जाता है बाय द महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ कुछ कुछ महाराष्ट्रन पब्लिक स्पीकर लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। तो हमेशा से लोकल इशू में ओवरऑल प्रॉब्लम रहा ही है। तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसके अंदर में क्या हुआ कि हर एक स्टेट को अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया था। तो आप अगर बोलोगे तो आंध्र प्रदेश को अलग किया गया मद्रास से, उसके बाद फिर हरियाणा को अलग किया पंजाब से, गुजरात को अलग किया महाराष्ट्र से। फिर कुछ तो जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो हर एक स्टेट का अपना अपना बाउंड्री सेट होता है ना, तो बेलागावी में बाउंड्री सेट हो नहीं पाया ढंग से, तो इसलिए आज भी चलते आ रहा है। तो ये एक इशू है। एंड हाँ, तो सेम नॉर्दर्न कंसर्न कर्नाटका में। नॉर्थ ईस्ट में भी है, ऐसे ही हाँ बॉर्डर सेम इश्यूज। कंसर्न, हाँ। हाँ नॉर्थ ईस्ट में भी है। और ये डिपेंड करता है कैसे बॉर्डर को आप करते हो। कभी कभी बॉर्डर में ऐसा होता है कि लोग मिक्स रहते हैं, तो ये मिक्स वाला काम का मतलब मिक्स है, मतलब मराठी लोग भी है, कर्नाटक कन्नड़ स्पीकिंग भी है। तो सब एक दूसरे को क्लेम करते हैं कि मेरे यहाँ मेरे यहाँ मेरे यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख सकते हो। वैसी SYL इशू है। पंजाब बोलता है, अगर एक लाइन बोला जाए तो SYL एक तरह से कैनल हो गया। कैनल है ना ये तो SYL। हाँ, हाँ जी। इरिगेशनल कैनल, हाँ, हाँ। तो इरिगेशन पंजाब पर्पस। बोलते हैं कि जो बियास रिवर है, अब बियास कैसे हो, अब तुम कनेक्ट करो इससे इंडस वाटर ट्रीटी से। ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी है पहले है क्या? बताओ करुण। वाटर शेयरिंग है इंडिया हाँ, एंड वाटर पाकिस्तान के बीच। शेयरिंग अग्रीमेंट है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इट 19 वॉज 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने इसको किया था एक तरह ऊपर से, किया मतलब था। हाँ मॉनिटर किया था, और फिर उसको उसी में साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। अभी तक वॉर के समय में इतना वॉर हुआ लेकिन इंडिया ने कभी भी वॉलेट नहीं किया इंडस वाटर ट्रीटी। दिस शोकेसेस इंडिया स्टैंड, जो ग्लोबल स्टैंड, ह्यूमैनिटी स्टैंड तो बोल सकते हैं।
तब आते हैं इसके अंदर। तो वाटर ट्रीटी में क्या हुआ था कि इन 6 रिवर, BRS, बियास, रवि या सतलज, ये इंडिया को मिलेगा। और बाकी जो बचा क्या हो गया, इंडस हो गया, इंडस, चेनाब, झेलम, चेनाब और झेलम। झेलम। अच्छा चेनाब और झेलम, तो ये जाएगा पाकिस्तान के पास में। तो 80-20 का वो एक तरह से है, तुम सर्च करने के बाद 70-30 80-20 है। तो 80% पाकिस्तान के पास जाएगा, 20% इंडिया के पास आएगा। तो अब आते हैं इस पर, पंजाब पर आते हैं। तो पंजाब डिवीजन जो हुआ था पाकिस्तान से, तो वेस्ट पंजाब अलग है, ईस्ट पंजाब अलग है। मतलब ईस्ट पंजाब छोटा पंजाब हो गया, वेस्ट पंजाब से बड़ा पंजाब हो गया, तो पाकिस्तान में चले गया। तो पंजाब के पास सिर्फ और सिर्फ वाटर क्या मिला, बियास मिला और रवि मिला। तो बियास एक तरह से डिवीजन होता है बिटवीन द हरियाणा एंड पंजाब। तो हरियाणा मांगता है कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा हूँ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरत होता है वाटर। पंजाब बोलता है कि हम लोग एक तरह से एग्रीकल्चर सोसाइटी है, वहाँ पर वीट राइस से कल्टीवेशन होता है, इसे जरूरत है। तो दोनों में डिस्प्यूट बहुत सालों से रहा है। और ये एक तरह से, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट सिर्फ वाटर का नहीं, ये एक तरह से रिलीजियस डिस्प्यूट बोल सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, लेकिन एक तरह से होता है ना पंजाबी माइंडसेट, और इसका एक रहता है कि हरियाणा दूसरे पॉपुलेशन रहते हैं, हिंदू रहते हैं वहां पर, खालिस्तान, तो खालिस्तान डिमांड भी इस पर है, एसवाइल कैनल इशू का। तो अभी, तो ये बहुत कंटेंशियस इशू है बिटवीन द हरियाणा एंड पंजाब। तो ये और बात करते हैं कि पंजाब बोलते हैं कि हरियाणा देता ही नहीं है पानी। एक तो ईस्ट ये इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो इंडिया और चाइना के बीच में इशू है कि चाइना चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन बाय द नेम यांगते रिवर। तो चाइना जो डैम्स बना देता है, तो रिवर वाटर जो है ब्लॉक हो जाता है, एंड अगेन वो सडनली वाटर रिलीज भी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमें फ्लडिंग भी देखने को मिलती है। तो एक इंटरनेशनल इशू इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे भी है। हाँ। तो इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी कोई वाटर ट्रीटी नहीं है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हाँ। तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो जगह पर डैम बना दे रहे हैं यांगसी रिवर के ऊपर में। मतलब ब्रह्मपुत्र तो वही रिवर, सेम ही रिवर है, बस नाम अलग है। नाम ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र से फिर आता है बांग्लादेश में, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका पद्मा या दूसरा नाम हो जाता है उसका, मानसी। वही ब्रह्मपुत्र रिवर। जब जमुना बोलते बांग्लादेश, हैं क्या, बांग्लादेश में। जमुना, कौन जमुना। सा, हाँ। जमुना, ठीक है। तो वही नाम सेम ही है। तो यांगसी रिवर में उन्होंने बहुत सारे डैम बनाए। तो क्या होता है कि जो ई फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है, कम होने से, तो वो जब कम हो जाएगा तो फिर लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से उनका वाटर स्कैसिटी, फूड सिक्योरिटी का खतरा हो जाता है। तो ये कारण कारण है। और चाइना ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा है, चाइना ये बाकी इंडो चाइना में कर रही है। इराडेबे रिवर है ना, वो सर्च करना है इसको। हम्म। तो उस पर भी इशू है, लाओस, थाईलैंड, चाइना एक्सेट्रा, दोनों के बीच में। तो तो एक सब वाटर इशू रहता है हर कंट्री स्टेट के बीच में। तो ये तो यहाँ पे हम लास्ट 2 दिन से बात कर रहे हैं कि वो सिटीजन चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स, दिस एक इज बार मानसी, बस एक लास्ट है। तो हम्म। पहली बात है कि जो इंडिया में इंडस वाटर का स्टार्टिंग नहीं होता, इंडस वाटर राइजेस फ्रॉम द तिब्बत रीजन, ठीक है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ चेनाब, झेलम, और दूसरा रवि और बियास। सतलज भी इंडिया से नहीं आता, ये बाहर से आता है एक तरह से, शायद तिब्बत में। तो ये याद रखना चाहिए। और बियास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। मानसरोवर लेक से इमर्जेंस होते हैं, राइट? मानसरोवर लेक से नहीं है मानसी, मतलब ही नहीं है लेक से नहीं, उससे। वहां से कोई एक रिवर इमर्ज होती है। नहीं, मानसरोवर डिफरेंट है। वो हिस्टोरिकल और कंटेक्स और इंडियन सिविलाइजेशन टूरिज्म के के लिए इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से, मानसरोवर लेक। वो सतलुज दूसरा है होती है दूसरा। हाँ, सतलुज मानसी, मानसरोवर से हाँ, रीजन होती है। इमर्ज होती है, राइट। कौन सा सतलुज रिवर? रिवर। सतलुज। सतलज रिवर, ठीक है। सो तो मानसरोवर तो इंडिया में नहीं है, वो तो चाइना हाँ। में। तो एक जॉग्राफिकल हाँ, कंसेप्ट। तिब्बत रीजन में। ठीक है। So we've been talking about the Charter for the Rights of the Domestic Workers. This is specifically in the context of Gurugram. So we see कि जो challenges है workers को face करने पड़ते हैं, extreme brutality है, यहाँ पे pictures भी है कि they've beaten on their knuckles of the hands और feet के ऊपर भी smash किया गया है। So sexual abuse है, ill treatment है, and ये cases unreported जाते हैं। So ये सबसे बड़ी problem है। सो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो हम बात करेंगे कि कैसे सेक्टर को और फॉर्मलाइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन से कि जो रोल है RWAs का वो इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेशन ऑफ द डेटा अबाउट देम,
एंड जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स अगेंस्ट सच इंस्टेंसेस, जो ब्रुटैलिटी की बात करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, तो एक तो पॉक्सो एक्ट हो गया स्पेसिफिकली, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, अगेन टीनेज डोमेस्टिक वर्कर्स भी रखे जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स भी होते हैं। देन सेकंड एक्ट हो गया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. So this is there. So we can imagine कि suppose अगर domestic workers strike कर लेते, like even in the society which वाले वैसे cases आए हैं कि लोग अपना frustration domestic workers के ऊपर निकालते हैं, तो उनको they slap, even जो guards होते हैं उनको slap कर देते हैं, just because अभी recently ये incident हुआ था कि उनका कोई like courier आया होगा, तो he said कि guard ने inform नहीं किया, तो that's why he slapped the guard. So ऐसे instances देखे जाते हैं WhatsApp पे भी again पर जुड़े हुए हैं, अगर हर कोई छोड़ता है तो फिर उसको ये और नहीं लेता, तो मतलब ऑल एम्प्लॉयर्स आर कनेक्टेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इफ समवन क्विट्स अ जॉब तो उसको कोई और लेता भी नहीं है। सो ऐसे इंसिडेंसेस भी है, तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि अगर सारे डोमेस्टिक वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो व्हाट वुड बी द कंडीशन। तो हम वो उनकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करते, उनको वो ड्यू स्पेस जस्टिस नहीं देते, उस नज़र से नहीं देखते हैं। और दूसरा मानसिए कि इसमें इम्पोर्टेंट मतलब क्या 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 इशू है विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक वर्कर और क्या होना चाहिए, और आपका उनकी दो जो तीन मिनिमम एरिया वेज बताएं। है, मिनिमम वेज नीड्स हाँ टू बी फिक्स, क्योंकि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। लाइक हमारी सोसाइटी में अगेन जो रेट्स है वो फिक्स्ड है, सो वो किस बेसिस पे फिक्स्ड है वी डोंट नो। तो यहाँ पे जैसे 9,000 अ मंथ के लिए राउंड द क्लॉक डोमेस्टिक वर्क के लिए, मतलब 24/7 हेल्प के लिए ₹9,000, जस्ट 9,000 इन 1 मंथ। सो दिस इज देयर, एंड मिनिमम वर्किंग आवर्स उनके फिक्स होने चाहिए, किन कंडीशंस में दे हैव बीन वर्किंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड जो क्राइम्स है वो बात कर चुके हैं। सो आप और कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें हाईलाइट कर सकते हो विच आई हैव मिस्ड? डोमेस्टिक वर्कर्स का एसोसिएशन जो है अ, उसको भी थोड़ा एम्पावर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्ट और लीगल हेल्प। फिर और चाइल्ड, हाँ, या चाइल्ड का एम्प्लॉयमेंट होता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर तो रहता ही है आर्टिकल 23 के अंदर में, लेकिन बहुत सारे लोग चाइल्ड को एम्प्लॉय करते हो डोमेस्टिक वर्कर, हाँ, डोमेस्टिक हेल्पर। एक पूछना था मानसी कि इंडिया में लग्जरी जो ब्रांड है वो क्यों नहीं सबसे ज्यादा एक प्रमोट होता है वर्ल्ड वाइड, जैसे हम सब पेरिस से क्यों सुनते हैं, पेरिस हो गया या फिर वियना का तो नहीं है, मोस्टली हाँ पेरिस और मतलब इटली, हाँ, मतलब फ्रांस, फ्रांस और इटली का सबसे इन ज्यादा। इन रीजन्स में जो इवन जो लग्जरी ब्रांड्स वो सबसे ज्यादा फ्रांस और इटली से ही है। सो रीजन यही है कि इंडिया स्टिल डेवलपिंग स्टेजेस में है, हाई इनकम इनइक्वालिटी है, तो जो वेल ऑफ पीपल है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हम उन्हीं को देखते हैं, दे गो फॉर सच हाई एक्सटेंडेड एक्सटेंसिव जो ब्रांड्स हैं। एंड इंडिया में पर लेकिन कैपिटल हिस्टोरिकली इंडिया का तो सिल्क ट्रेडिशन में तो हाईएस्ट रहा है, मतलब सिल्क का वन ऑफ द बेस्ट सिल्क इंडिया में बनता था और रोमन खरीदते थे सिल्क को। और बाकी समय तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मतलब हम लोग अब कर ही नहीं पा रहे पिछले 70 साल में भी। हो सकता है कि हाँ ठीक है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंदर में नहीं हो सकता था, मतलब ये जो लेकिन उसके बाद ब्रांड है अभी इसमें वो बहुत लंबा टाइम पीरियड चाहिए, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है ना उसका बहुत ज्यादा, हम बोलेंगे कि मॉनेटरी अमाउंट में दे चार्ज फॉर द ब्रांड वैल्यू। जो मटेरियल है वो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इंडिया के थ्रू ही एक्सपोर्ट हो रहा होगा, बट जो इतने साल जो उनको गुडविल अर्न करने में टाइम लग जाता है, लाइक आपने इंडिया में जो एक एग्जांपल दिया वो सिल्क का ही है अगेन, तो आई गेस वो मेन रीजन है। प्लस जो इकोनॉमिक जो जनरल रीजंस है वो तो है ही कि हमारी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर जो बात आ जाती है। मैं आई थिंक एक बस एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूंगा यहाँ पर, जो हमारे जो एलिट है ना उन पे डिपेंड करता है कि लग्जरी ब्रांड कैसा रहेगा। जैसे जो बाहर के जो एलिट है, इटालियन एलिट हो गए या फ्रेंच एलिट हो गए, वो प्रेफर करते हैं लोकल जो लग्जरी आइटम। जैसे इंडिया में अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, सब्यसाची हो गया या फिर हाई और कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा ब्रांड जो इंडिया में जो वो पहनते हैं। हम्म। जब एलिट जब स्टार्ट करते हैं ना तो देखा देखा देखी बाकी लोग आते हैं, अफ्लुएंट मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे होता है पूरा चेन रिएक्शन सोसाइटी के अंदर में। अब जब एलिट ही जब ज़ारा तो बोल सकते हैं मिड टर्म हो गया, हम बात करते हैं हाई टर्म में तो प्राडा और गुची का पहनते हैं, तो फिर हम्म। क्या बनेगा अपना ब्रांड इंडिया में, वो बात हाँ, है। राइट।
अब वो भी और बात कर सकते पश हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी सबसे पहले लाइक अगर हम बात करें तो वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो एक वो एज भी है जो रहती है। हम्म, यहाँ लिखा है पश्मीना। पश्मीना है क्या ऐसे? पश्मीना शॉल एक शीप वूल है, जो पश्मीना शीप हमें हम्म, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मिलती है। ट्रू। बहुत महंगा होता है। और हम्म। लग्जरी ब्रांड से रिलेटेड जैसे इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह होती है, उनका भी रोल होता है क्या कि इंडिया में कम है अभी? हाँ, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं, लगती, नहीं इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा ही काफी होता होगा ज्यादा ना। लगती है, हाँ ज्यादा लगती है। हाँ, ज्यादा लगती है, हाँ। जब गाड़ी में लगता है बहुत ज्यादा, 50% लगता है तो यहाँ तो लगनी चाहिए। यार, हम्म। ये भी लगता ही होगा। ठीक है। ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ शॉल्स जो इंडिया में मिलते हैं। So sheep herder community, which is also called Bharwad, for the protection in winters, and they were made of locally sourced sheep wool. So ये कच्ची वूलन शॉल्स की बात हो रही है, तो भरवाड़ कम्युनिटी है जो इनको मैन्युफैक्चर करती है। सो कमर्शलाइजेशन की बात है, जो अगेन वही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो ही इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर सकते हैं। हम्म, लाइक अभी जैसे एक और अगर वर्ड लिखा है ऊपर में, हम बात करें, कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी प्रिंट पश्मीना शॉल, तो कलमकारी है कैसे? सो कलमकारी, हाँ वो एक टेक्निक है ऑफ प्रिंटिंग हाँ, टेक्निक है, हाँ। फ्रॉम द आंध्र स्टेट ऑफ प्रदेश और आंध्र तेलंगाना प्रदेश। से स्टार्ट हुआ था पेंटिंग। हैंड पेंटिंग है। हाँ, यहाँ कृषि। वर्ली और पिछवाल एंड मुगल दरबार पश्मीना। यही बस। तो वर्ली भी वर्ली। इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग है ना, वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली, हाँ। गुजरात शायद है वर्ली। सो महाराष्ट्र। वर्ली पेंटिंग। ठीक है। So COP meetings must use climate science to promote justice and equity. Climate science promote की जानी चाहिए, ये एक पार्ट ऑफ आर्गुमेंट है। 1995 से we have been seeing कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होस्ट की जा रही हैं, एंड these are under the UNFCCC. The convention is there, United Nations Framework Convention to combat climate change. Paris Agreement targets we know. Then So पे बात हो रही है कि that it has taken nearly 3 decades for the COP to acknowledge this fact, as laid out in the Dubai Consensus, suggests that the political expediency and the strategic second guessing has unfortunately weaponized even the climate science. So ये term है strategic second guessing.